Okay, a very good morning very, to all. Today's webinar resource person, Mr. Abhishek Wakodkar, and all dear participants. On the behalf of Training and Placement Cell, SKNSITS Lonara, I, Professor Chetan Pagar, welcome you all for one-day webinar on impact hiring in different sectors and career opportunities after COVID-19. To conduct a webinar, we have a resource person with us, Mr. Abhishek Wakodkar. He completed his engineering in computer from Pune University. He currently pursuing his masters in political science and international relations from MIT College, Pune. His work experience is as follows. He is associated with NGO Greenpeace India. He is also associated with UNICEF India. He is perception team member and research member in JPG Strategies, which is in a war room of Honorable MLA Rohit Pawar. He has completed 3 years integrated batch of UPSC from Unique Academy. He is teaching professional as a social science subject and aptitude as well as soft skill trainer. He is founder and director of Habisri Academy. So, such an eminent personality with today's resource person, I welcome you, sir. Participate are requested for the please stay tuned in our YouTube channel. Uh, Feedback form link and certification link will be shared to you in YouTube chat box. And one more request to all participants. Suppose you have any questions or any queries, you can ask in YouTube chat box at the end of this session. Now I hand over charge to Abhishek sir. Abhishek sir, it is over to you. Thank you. Yes, yes. Thanks for the introduction as well as this opportunity. And before starting the session, I would like to thanks as well Dr. M.S. Gaikwad, the campus director, Sinhagad Lonavala campus, Dr. M.S. Rohokle, sir, principal, SKNS TIS Lonavala. इसके अलावा respected professor who had given me this opportunity as well as who had a talk with me regarding this webinar for arranging this for students. Professor Chetan Pagar sir, the training and placement officer, SKNS Lonavala. At the last, Mr. Yogesh Zado sir, the TPO SIT Lonavala, all the head of the departments, teaching, non-teaching staff, and all the lovely students for giving me this opportunity. So, before starting the session, I will tell you what will be in this session. Like what we are going to do, we are going to see the different what are the different sectors. Apart from this, like what will be the market scenario, what will be the hiring process after COVID-19, या फिर like what are the different domains or you should focus on. And iske alawa, apart from this, what we are going to cover is like there are near about 10 to 15 parameters which you can choose as a career opportunity after engineering as well as COVID-19. Okay. So of course, so before do not waste the time. Directly we will jump on to our webinar. Okay. Fine. सो सर ने जैसे आपको बोला होगा लाइक क्या क्या हम कवर करने हैं और मैंने भी आपको बोल दिया कि लाइक व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ द सेशन. फाइन. या सो देयर मस्ट बी डिफरेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड या फिर इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हो, एचओडीज हो जो अटेंड करते होगे, राइट. या फिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो कि जिनको ऑफ कोर्स मतलब पता तो चलता है कि लाइक व्हाट इज सेमिनार इज ऑल अबाउट, बट सेक्टर के बारे में अगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही बात अगर पता नहीं तो लाइक it doesn't make any sense, right? So I'll just short में I will give you an introduction regarding sectors क्या होते हैं, right? Yeah. So like when you talk about Indian economy, like we generally talk about 3 to 4 sectors, like different sectors होते हैं. So initially it comes like primary sector, right? जिसमें क्या आता है like poultry हो या फिर agriculture या फिर fishing या फिर coal mining, all these sectors which comes under primary sector. ठीक है. या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक सेकेंडरी सेक्टर दूसरा जो आता है वो है सेकेंडरी सेक्टर. व्हाट कम्स इन सेकेंडरी सेक्टर? जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन हो यार, सेकेंडरी सेक्टर को स्पेशली हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं. ठीक है. इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पूरी आती है
या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन. These are the two things which comes under secondary sector. So we had seen primary, which is also called as like agrarian sector, क्योंकि क्या होता है ना, नेचुरल जो रिसोर्सेस है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल, ठीक है, इसकी वजह से उसको प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं. सेकेंडरी वी हैड सीन. टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है, तो ऑल द सर्विसेज, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो, फाइनेंस, सर्विस, इंश्योरेंस, ऑल दिस कम्स अंडर टर्शियरी सेक्टर. फाइन. या फिर इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम यू आर paying money and like I'm providing you a service, that also comes under service sector. ठीक है, तो ये है टर्शरी सेक्टर जिसमें आईटी, कंप्यूटर्स, ये सब आते हैं टर्शरी सेक्टर्स में, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. सो वी हैड सीन सेक्टर्स. एंड लास्ट जो होता है क्वार्टरनरी. अभी फॉर एग्जांपल, अभी इन सेंस लाइक ये जो 3 सेक्टर्स हमने देखे, ये सेक्टर्स का फाइनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑन दैट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है. बट फोर्थ जो सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ सकता है, तो जिसको हम क्वार्टरनरी सेक्टर बोलते हैं. व्हाट कम्स इन दिस, जैसे रिसर्च हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लैब्स, या फिर हैप्पीनेस इन फ्यूचर हैप्पीनेस इंडेक्स हो, जैसे भूटान एक एग्जांपल है, who had included happiness index as a like जिसमें कंट्री की डेवलपमेंट हुई है या नहीं, ये भी उन्होंने उसमें काउंट किया है, राइट. सो दिस वाज जस्ट एक स्मॉल इंट्रोडक्शन फॉर द स्टूडेंट्स कि जिसमें सेक्टर्स क्या होते हैं. और इसके बाद हम जो देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी व्हाट विल बी द डिफरेंट इम्पैक्ट्स, लाइक क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, like कौन से sectors which will be in boom, which will recover back, which will take a time, right. These are some of the factors which we are going to see. ठीक है. अभी क्या होता है, लाइक देर आर सेवरल सेक्टर्स विच आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, या फिर कुछ अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ होते हैं, राइट. तो सेक्टर्स के बारे में तो आपको पता चल गया, राइट. सो नाउ वी विल सी सेक्टर्स विच विल बाउंस बैक क्विकली. अभी कोविड-19 सिचुएशन है, इट इज अ सिचुएशन विच इज नॉट फेस्ड बाय नॉट जस्ट अ सिटी, या फिर कोई पुणे सिटी हो, या फिर any state ho, या फिर any country ho. It's a global challenge for the entire world, right. So what will be the sectors that will bounce back quickly after COVID-19, right. So for example just हम लेते हैं like transportation हो, storage sector हो, या फिर warehousing sector हो. These are some of the sectors like जिसके हम मैंने directly नाम आपको बताया. These are the sectors which will bounce back quickly. मतलब जैसे ही COVID-19 खत्म हो जाएगा, after that moment these are some of the sectors which will bounce back, right. Fine. अभी ये था first point we had seen, the sectors which will bounce back. Apart from this, like sectors curbed by Indian government. Curbed by Indian government मतलब क्या, मतलब जिसपे गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा है. फॉर एग्जांपल मॉल्स हो, पब्लिक प्लेसेस हो, या फिर एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, राइट, या फिर एंटरटेनमेंट सेक्टर हो. दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स जिसपे गवर्नमेंट ने कर्ब किया है, राइट, कंट्रोल रखा है. क्योंकि क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग मासेस में कहाँ पे आते हैं, दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं, राइट. सो ऐसे भी जो सेक्टर्स है, सेक्टर्स विच आर कर्ब्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, जैसे ही वो उनको रिलीज कर देंगे, उसमें भी ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट्स डिसीजन, उसके बेसिस पे ये जो सेक्टर्स है इसमें भी जैसे जैसे गवर्नमेंट उसको रिलीज करेगा वैसे वो सेक्टर्स में रिकवरी जल्दी आ जाएगी. ठीक है. अभी लाइक इफ यू टॉक अबाउट मॉल्स और व्हाट वी कैन से पब्लिक प्लेसेस जैसे बस स्टैंड्स वगैरह हो, तो यहाँ पे कैसे लोग डरेंगे जाने के लिए, राइट. सो गवर्नमेंट विल टेक सच एक्शन कि जो which will be in the favor of youth, या फिर which will be in the favor of people, person, citizens. ठीक है. Yeah. So these are some of the sectors curbed by Indian government. Second point we had seen. Third, like sectors like e-commerce and home delivery. ठीक है. अभी now according to industry experts ऐसा बोला जाता है कि these are the sectors like जैसे होम डिलीवरी हो या फिर ई कॉमर्स हो, ये सेक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा डिमांड रहेगी. These are the sectors which will see uptick in the demand. ठीक है. सो ये थे कुछ ऐसे सेक्टर्स कि जिसपे हमने देखा कि लाइक विच विल बाउंस बैक इमीडिएटली आफ्टर कोविड-19. ठीक है. अभी ऐसे कौन से सेक्टर्स है कि सेक्टर्स दैट विल टेक सम टाइम और विच विल टेक मोर टाइम टू रिकवर. ठीक है. ऐसे कौन से सेक्टर्स है, तो फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज लाइक सेक्टर्स डिपेंड ऑन पीपल्स बिहेवियर. अभी पीपल्स बिहेवियर जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट पॉइंट वी हैड सीन सेक्टर्स कर्ब्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, राइट. तो उसमें कुछ सेक्टर्स हमने बोला लाइक वी हैड सीन कि जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, बट गवर्नमेंट
नेवर रिलीजेस, लाइक ऐसा कभी नहीं होगा कि गवर्नमेंट, ऐसा आपने देखा क्या कि स्कूल्स पहले स्टार्ट करती है? नो, प्रायोरिटी चेंज की, राइट? सो ऑफ कोर्स लाइक ऐसे सेक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन पीपल्स बिहेवियर, तो इन दैट सेक्टर्स, दो सेक्टर्स विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर, ठीक है? अभी ऐसे कौन से सेक्टर्स है? तो जैसे हमने देखा ट्रैवल्स, मॉल्स, थिएटर, ठीक है, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लाइंग ओवरसीज हो, या फिर स्टेइंग इन होटल्स, ठीक है, टूरिज्म सेक्टर, these are some of the sectors which will take time, और which depends on people's behavior, और वो टाइम ही नहीं लगेगा, तो it will take long time to recover, ठीक है? सो ये हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक फ्रॉम द लास्ट कुछ एक्सपीरियंस की वजह से व्हाट इंडस्ट्रियलिस्ट सेज, लाइक टूरिज्म विल टेक द लॉन्गेस्ट टाइम टू कम बैक, क्योंकि क्या होता है ना, लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पे मासेस होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम टूरिज्म लेगा टू गेट टू रिकवर, ठीक है? या अभी लाइक ये फर्स्ट टाइम वी हैड सीन सेक्टर्स, देन वी हैड सीन what will be the sectors that will bounce back, then we had seen what are the sectors that will take time to recover, or which will take long time to recover. Apart from this, now we are going to see which are the sectors that are in boom as well as will be in boom in future, ठीक है? तो ये कोविड-19 की जब लॉकडाउन स्ट्रिक्टली चल रहा था, दैट टाइम आल्सो यू हैड सीन कि लाइक फार्मा हो, मेडिकल सेक्टर हो, या फिर हॉस्पिटल्स हो, ये जो सेक्टर्स है, सब सबको रिस्ट्रिक्शंस डाले थे, बट दीज आर द सेक्टर्स जिस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। सो फार्मा, मेडिकल, उसके बाद हेल्थ सेक्टर, या फिर डिजिटल कंपनीज या फिर कंपनीज प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज, दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइमरी सेक्टर, हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा क्या क्या आता है उसमें, राइट? जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड, द प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल, ठीक है, नेचर, ऐसे कुछ सेक्टर्स प्राइमरी हमने देखा। तो प्राइमरी सेक्टर जैसे आपने देखा होगा कि सब कुछ बंद कर दिया, बट भाजी पाला जाए, लाइक वेजिटेबल्स जो होते हैं, वो बंद नहीं कर सकते, राइट? सो दीज आर द सेक्टर्स। या फिर telecommunication, online classes, these will be the sectors which was in boom in covid situation, which are booming today as well, and which will be in boom in future as well, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे कि जैसे हमने देखा which will bounce back, which will not bounce back, and which are in boom as well as which will be in boom। अभी इसमें आईटी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए मैंने जैसे बोला, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कंपनीज प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज। तो लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट हायरिंग प्रोसेस, या फिर आपको फ्यूचर में लाइक ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि लाइक व्हाट आई शुड चूज फॉर माय, लाइक आगे मैं क्या करूंगा, राइट? तो आई विल सजेस्ट कि डिजिटल कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज, कंपनीज प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज, ठीक है? तो ऐसे अगर कुछ कोर्सेस है, तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर दैट, क्योंकि इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर आफ्टर कोविड-19 एज वेल, ठीक है? सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। जैसे मैंने बोला कि बूम में रहेंगे, बूम में है और बूम में आगे भी रहेंगे, कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, ठीक है? सो दीज आर द सम ऑफ द सेक्टर्स विच वी हैड सीन कि जिसमें क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है कैसी कैसी सिचुएशन है, एंड दिस इज द डेटा विच आई हैड टेकन। अभी फॉर एग्जाम्पल बिफोर गोइंग फर्दर, मुझे आपको एक बात बोलनी है कि सी कभी भी आप कोई ओपिनियन बनाते हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू, आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो वेयर आई हैड टेकन दिस डेटा, और अगर इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट आई शुड रेफर। तो लाइक देयर आर सम ऑफ द सोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, या फिर द मिंट हो, वायर हो, दी हिंदू हो, या फिर पर्सन्स के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, तो लाइक रघुराम राजन हो, कि जो आरबीआई के गवर्नर है, तो या फिर कोई भी इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी है, उनके रिटायर्ड ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर्स है, ठीक है? तो जब आप कोई खुद का ओपिनियन बनाते हो, तो रेफर दीज पर्सन्स, ठीक है? यूट्यूब पे कोई फेमस है, उसका रेफरेंस मत लो, ठीक है? या फिर यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल कोई दूसरा सेक्टर है कि, या फिर हम बोलेंगे मेडिटेशन के बारे में कोई बंदा बहुत फेमस है यूट्यूब पे, तो डोंट टेक हिज ओपिनियन फॉर इकोनॉमी। इट डजंट मीन कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बट वाइल मेकिंग योर ओन ओपिनियन, मेक श्योर यू टेक द राइट रिसोर्सेस, कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, सर आपको मैसेज डाल देंगे, ठीक है? सो दिस वाज सम ऑफ द पार्ट्स, लाइक जैसे हमने देखा। सो
ये जो 3 सेक्टर्स हमने देखे, व्हाट आर द लेसन्स वी शुड लर्न फ्रॉम दिस, राइट? दिस इज द चैलेंज व्हिच वी हैड सीन ग्लोबली, ये चैलेंज है, या फिर व्हिच इज फेस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड, राइट? तो कौन से ऐसे लेसन से दैट वी शुड लर्न, ठीक है? तो लाइक कंट्रीज हेल्थ सेक्टर जो है हमारा बहुत कम है, राइट? हमारा जो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर एज वेल एज एजुकेशन सेक्टर, ठीक है? इफ यू टेक द लास्ट फ्यू बजट्स फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, आपने देखा होगा कि हार्डली 1 or 2% वी आर इन्वेस्टिंग, वी आर गिविंग टू आवर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर, या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, ठीक है? तो ऐसे इसमें बहुत कम हमारी गवर्नमेंट या फिर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो लाइक व्हाट वी शुड डू, वी शुड massively ramped up upon for for these purposes. We should massively ramped up, and for that, for what we need is larger commitment. We need two things, like massively ramped up upon these sources, these investments, as well as what apart from this, इसके अलावा हमें इसके लिए हमें क्या चाहिए? तो government's larger commitment. So it is the message for all those who are listening as well as for the गवर्नमेंट। तो हम मैसेज नहीं दे सकते, बट इन जनरल कि लाइक क्या हमने सीखना चाहिए, गवर्नमेंट ने इसमें क्या करना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में करने चाहिए, ठीक है? एंड सेकंड थिंग क्या होता है ना, लाइक हमारी जो कुछ प्रोडक्ट्स है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, या फिर हमारे जो मसालेज वगैरह होते हैं, दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स जिसको वर्ल्ड वाइड डिमांड है इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है? तो इन दैट केस लाइक वी शुड see this as an opportunity, we should try for self sufficiency, like India एक self sufficient होना चाहिए, ठीक है? On that basis, like these are the two lessons we should learn on this basis, ठीक है? या तो इसके अलावा लाइक और एक लिंक है कि जो डेटा मैंने जिसमें से लिया है कि वो रघुराम राजन सर जो है हमारे आरबीआई गवर्नर, उनका उनकी भी लिंक सर आपको शेयर कर देंगे, यू कैन लिसन दैट वीडियो एज वेल, ठीक है? तो उनको ऐसा पूछा था लाइक इकोनॉमिक, लाइक कोविड-19 के बाद व्हाट विल बी द सिचुएशन, लाइक जैसे क्या होता है ना इकोनॉमी में, ऐसे एक वी शेप होता है और एक यू शेप इकोनॉमी होता है, ऐसे बोले जाता है, राइट? तो यू शेप मतलब क्या कि लाइक धीरे धीरे इकोनॉमी ऊपर आएगी, कि लाइक वी शेप कि लाइक इमीडिएटली नीचे और डायरेक्ट ऊपर आएगी। सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड फॉर टू रघुराम राजन। सो लाइक ही व्हाट ही हैड सेड इज लाइक हमारी जो इकोनॉमी है इट विल ट्रिगर्ड, लाइक स्लोली स्लोली ऊपर आएगी, इट विल बी इन द यू शेप, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या बोलेंगे, लाइक इसका एक रियल टाइम एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे क्या व्हाट डज ही व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज लाइक फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर हम लेते हैं, तो हमारे को पता है कि लाइक बाहर जाना इट इज वन ऑफ द रिस्क, राइट? एक रिस्क है कि इवन लाइक वैक्सीन आ गए तभी भी लोग क्या सोचेंगे, नहीं यार लाइक आगे के 6 महीने वी शुड टेक प्रिकॉशंस। तो ऑटो सेक्टर में लाइक ऑटो सेक्टर क्या करेगा, दे मे रिफॉर्म इन देयर वर्क प्रोसेस, वर्क कि क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कार्स वगैरह जनरेट करेंगे, सो दैट व्हाट पीपल विल थिंक यार rather than using public transport we should go in our own vehicle, we should travel in our own vehicle, ठीक है? तो ये एक रिस्क है, लाइक ये एक एग्जांपल था कि जिसमें लाइक स्लोली इसका विच इज लाइक हमारी जो इकोनॉमी इट विल टेक टाइम, स्लोली रिकवर होगा, ठीक है? अभी और एक एग्जांपल जैसे टीचिंग का हम ले सकते हैं। अभी यू मस्ट हैव सीन कि कैसे ये आंसर करेक्ट है, कैसे स्लोली रिकवर होगी। एंड उन्होंने और एक बात क्या बोली कि इट विल वैरी फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर, कंपनी टू कंपनीज, इट विल वैरी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने पूरा ऑनलाइन कर दिया है, राइट? सो दिस वाज द एग्जांपल कि वो हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा टीचिंग सेक्टर में। इवन ये जो हम अभी अभी कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि अब कैसे हम ऑनलाइन जा रहे हैं, लाइक स्लोली कैसे रिकवर होगा। हमारे कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए, स्टूडेंट्स को जल्दी बुलाया नहीं जा रहा है कॉलेजेस में, और अगर हो भी तो लाइक देयर आर लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, बहुत सारे कॉलेजेस में जहाँ पे स्टूडेंट्स को अभी भी अलाउ नहीं है, राइट? मतलब आने के लिए अलाउ नहीं है, बिकॉज दीज आर द सेक्टर्स विच विल ओपन, बहुत लेट ओपन होगा, राइट? सो दिस वाज द पार्ट, लाइक ये एक एग्जांपल था। अपार्ट फ्रॉम दिस, next point what we are going to say is like market scenarios क्या रहेगा, like hiring processes क्या रहेगी, ठीक है? तो इन करंट सिचुएशन नियर अबाउट, अगर आप जहाँ जब से स्टार्ट हुआ है
लाइक कोविड-19 की सिचुएशन जब से स्टार्ट हुए, फ्रॉम दैट मोमेंट लाइक ओवरऑल अगर पूरे सेक्टर्स आप देखते हो इन एंटायर इंडिया, एंटायर वर्ल्ड हो, right? तो नियर अबाउट 60 to 65% ओवरऑल सेक्टर्स पे इसका इम्पैक्ट दिखा है, ठीक है। एंड दिस वाज द कंटेंट व्हिच आई हैड टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक्स टाइम्स, ठीक है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपर्ट्स का ये मानना ऐसा है कि ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं तो नियर अबाउट 60 to 65% इसका इम्पैक्ट हमें दिखा है, ठीक है। या अभी इम्पैक्ट दिखा है मतलब क्या होता है, लाइक आपने देखा होगा कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो गए कि जिनकी प्लेसमेंट हुए, बट ज्वाइनिंग डेट तो आई थी, लाइक बोला था कि जून में ज्वाइनिंग करेंगे, बट ये ज्वाइनिंग डेट्स डिले हुए हैं, राइट। So in short, what I want to tell is, like in entire country, like interviews, hiring process, or there will be drop rate, or cancellation of interviews, या फिर डिले इन डेट्स, ये सब दिखेगा, ठीक है। और वो दिख रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। एंड लाइक इफ यू टॉक अबाउट अभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है यहाँ पे, दिस इज द वेबिनार विच इज अरेंज्ड फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सो डेफिनेटली अगर हम देखते हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि सर्विस सेक्टर इज अ सेक्टर जिसमें बहुत सारी कंपनीज आती है कि जो सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। तो सर्विस सेक्टर में नियर अबाउट 10 to 15% इस पे इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। एंड इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, राइट। जैसे इसके बेस्ट एग्जांपल्स अगर आपने देखा होगा, आई विल टेल यू वन एग्जांपल। अगर आप हिंजवाड़ी में जाते हो तो यहाँ वहाँ पे कंपनी 3D PLM, हर बार हायरिंग प्रोसेस चालू रहती है, हर बार एवरी टाइम देयर इज रिक्वायरमेंट इन 3D PLM। कभी भी आप चेक कर सकते हो, इवन टुडे आप देख सकते हो, बट इसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा। या फिर जैसे BFSI डोमेन है, रिटेल डोमेन है, लॉजिस्टिक्स डोमेन है। BFSI मतलब बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस। या फिर रिटेल जिसमें ना क्या वॉलमार्ट, मोर, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द कंपनीज विच वर्क ऑन रिटेल डोमेन। या फिर लॉजिस्टिक्स जिसमें डिलीवरी वगैरह हो, तो इसमें भी क्या होता है ना, सो दीज आर सम ऑफ द डोमेन्स जिसमें लाइक अगर आप देखते हो तो लास्ट टाइम देर आर बहुत सारे, हर बार रिक्वायरमेंट इसमें होती है, बट टुडे इस पे पूरे ड्रॉप रेट्स दिख रहे हैं, या फिर हायरिंग डेट्स कम हो रही है, कैंसलेशन ऑफ इंटरव्यूज, या फिर डिले इन डेट्स, ठीक है। ये सारी चीजें हमें लाइक वी आर फीलिंग दैट एंड इट्स फैक्ट, ठीक है, कि जो हमें दिख रहा है, राइट। अभी जैसे मैंने बोला कि ओवरऑल हायरिंग प्रोसेस 10 to 15% होगा, राइट, कि सर्विस सेक्टर पे, राइट। अभी अगर ये सिचुएशन फॉर एग्जांपल, if this situation continues, so it may ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बोले हैं कि इट मे कंटिन्यू और इट मे एक्सीड, लाइक बहुत आगे जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। जैसे दिसंबर भी हम पकड़ सकते हैं या फिर आगे भी जा सकता है अगर सिचुएशंस कंटिन्यू रही तो, ठीक है। नाउ अभी और एक इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, लाइक अभी जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला कि लाइक करंट सिचुएशन वी हैड सीन 60 to 65% की जो हमने ओवरऑल सिचुएशन देखी, राइट। हायरिंग प्रोसेस, डिले रेट्स, डिले डेट्स की जो डिले हो रही है वो, या फिर कैंसलेशन ऑफ इंटरव्यूज, या फिर लाइक आपको जो डेट दी है, या फिर नो नॉट ड्रॉप रेट्स, जैसे मैंने बोला कि ये हमें दिख रहा है, राइट। दिस वाज ओवरऑल सिचुएशन, हायरिंग डेट्स डिले हो रही है, जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसे सेक्टर्स की जो हर बार उसमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे BFSI, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, बट करंटली अगर आप देखते हो तो इस पे इम्पैक्ट दिख रहा है। दिस इज द रियल टाइम एग्जांपल, ठीक है, कि जो एंड इवन लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में लास्ट आई वुड लाइक टू टेल कि दिस डेट आपकी अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉलेजेस में से स्टूडेंट्स में आई हैड सीन, आई हैड गॉट द फीडबैक, आई हैड गॉट द मैसेजेस फ्रॉम व्हाट्सएप एज वेल कि सर पूरा मतलब हमारे को बुलाया ही नहीं, लाइक कि एक तो डेट डिले कर लो। सो यू कैन इमेजिन, लाइक यू कैन आस्क योर जो बच्चों की स्टूडेंट प्लेसमेंट्स हो गए, यू कैन आस्क दैट, लाइक यू कैन सी दिस सिचुएशंस, ठीक है, ठीक है। अभी इसके लिए सोल्यूशन क्या है, लाइक व्हाट यू शुड डू, लाइक आप ऑफ कोर्स लाइक इसमें बिफोर गोइंग टू सोल्यूशन व्हाट आई विल सजेस्ट कि जो मैं हर स्टूडेंट को या फिर जहाँ पे भी मेरा वेबिनार होता है आई सजेस्ट दैट, ठीक है। क्या होता है, लाइक एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है, बी इन टच विथ योर TPOs। क्या होता है उनको पता रहता है, लाइक जब उनको मीन इन शॉर्ट बी जेन्यून विथ योर प्लेसमेंट्स। और इसमें आपको करना क्या है,
तो एक या दो लाइक व्हाट आई थिंक इज विल वर्क कि बी इन टच मतलब क्या कि सर लोगों से लाइक 7 दिन में आपको एटलीस्ट वन मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है सर को, लाइक पगार इन शॉर्ट हम पकड़ते हैं पगार सर को, चेतन सर को, कि क्योंकि क्या है ना आपको प्लेसमेंट चाहिए, लाइक 10 दिन में 2 बार सर को गुड मॉर्निंग बोलना है, राइट? सो उनको पता होता है कि इससे क्या होता है ना, लाइक उनको पता चलता है कि यार रियली ही नीड दैट। ऑफ कोर्स वो तो काम सबको कर रहे हैं, सबके फॉर ऑल स्टूडेंट्स ये वेबिनार है, बट बी इन टच विथ योर टीचर्स, बी इन टच विथ योर सीनियर्स जिनकी प्लेसमेंट हो गई है, ठीक है, सो दैट दे कैन अपडेट यू, ठीक है, फाइन, या वी विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट। अभी अभी ये जो इसका जो इम्पैक्ट है, इट इज नॉट ओनली ऑन द स्मॉल बेस्ट कंपनीज, इट इज ऑन द लार्ज बेस्ट कंपनीज एज वेल, एमएनसीज के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हुआ है। एंड डेफिनेटली इफ यू टॉक अबाउट कंपनीज प्रॉफिट, कोई भी अगर कंपनी स्टार्ट करता है तो कंपनी ऑलवेज रन्स ऑन प्रॉफिट, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसमें मुझे क्या बोलना है, तो अगर कंपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रही है तो डेफिनेटली क्या करेगी कंपनी, कंपनी विल लुक एज एन अल्टरनेटिव, एंड ये अल्टरनेटिव क्या रहेगा, तो दैट इज टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो दिस इज द क्या कंपनी को क्या करना है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी, उनका प्रॉफिट बढ़ाना, एंड फॉर दैट पर्पज व्हाट दे आर गोइंग टू यूज इज टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो, कौन सी लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जैसे क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, देर आर सेवरल थिंग्स, या फिर ऑटोमेशन हो, सेलेनियम एक टूल है, ऑटोमेशन टूल, ठीक है, कि जो कंपनीज विल लुक फॉर सच अल्टरनेटिव्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड अल्टरनेटिव्स, क्योंकि क्या करना है उनको, प्रोडक्टिविटी बढ़, उनको प्रॉफिट बढ़ाना है। तो इन दैट केस यू शुड चूज दिस एज अ करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर कोविड-19। जैसे जो भी आपका इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग हो, या फिर लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो, ठीक है, या फिर कोई सर्टिफिकेशंस हो, या फिर कोई भी कोर्सेस हो, ऑल दिस थिंग्स लाइक यू हैव टू फोकस ऑन, जो हम और एक बार लास्ट पैरामीटर में हम ये कवर करेंगे, ठीक है, या अभी ऑफ कोर्स। और एक पॉइंट मुझे इसमें क्या बोलना है, तो लास्ट टाइम जो कुछ स्टूडेंट्स हो गए कि जिनका इंटरेस्ट टूरिज्म या फिर एविएशन में है, एविएशन इन द सेंस कि ऐसी कंपनीज, एविएशन डोमेन, जैसे ऐसी कंपनीज की जो हार्डवेयर पार्ट्स बनाती है एरोप्लेन्स के वगैरह एंड ऑल दोस, ठीक है, जिसको एविएशन। अभी फ्रॉम लास्ट एक्सपीरियंस हमने क्या देखा कि भले कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एयरपोर्ट्स, टूरिज्म, these आर द सेक्टर्स which will take time to recover, but from लास्ट एक्सपीरियंस ऐसा बोला जाता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपर्ट्स ऐसे बोल रहे हैं कि even these are the sectors which are affected a lot, but from past experiences what we think is like वो थोड़ा जल्दी रिकवर होने का ट्राई करेंगे, और फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ भी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था इट विल टेक टाइम, बट कुछ कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जल्दी रिकवर हो जाएगा, ठीक है, फाइन। And like of course we had seen the slowdown in retail, hospitality, travel as well, ठीक है, yeah। So lastly like hiring, जो मेन कंसर्न है हमारा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कि हायरिंग प्रोसेस क्या रहेगी, कैंपस रिक्रूटमेंट जो चल रहा है उसमें भी डिले डेट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फाइनल सोल्यूशन क्या है फॉर इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो you have to focus on लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फर्स्ट थिंग, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो, या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन हो विच यू आर इंटरेस्टेड इन, या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल सर्विसेज जो रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हो, तो ट्राई टू डू सर्टिफिकेशंस और ट्राई टू स्टडी ऑन दिस सेक्टर्स, या फिर ई कॉमर्स हो, क्योंकि ये, या फिर ऑनलाइन जो अभी जैसे ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, ये सेक्टर्स ऐसे रहेंगे कि जो previously it was in boom, today it is also in boom, and tomorrow also it will be in boom, and according to industry experts as well as industrialists, वो ऐसा बोलते हैं कि like these are the sectors which will see uptake after COVID-19 as well, ठीक है। तो दिस वाज द लाइक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आपको पता एक ओवरऑल आपको आइडिया मिली होगी कि कैसे कैसे इम्पैक्ट होगा, लाइक जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स,
लाइक हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी सेक्टर्स, ठीक है। लेटर वी हैड सीन कि लाइक व्हाट आर द सेक्टर्स दैट विल बाउंस बैक। कौन से सेक्टर्स ऐसे रहेंगे कि जो बाउंस बैक हो गए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेक्टर्स कर्व्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। डिमांड इसमें और एक अभी फॉर एग्जांपल बाउंस, जो बाउंस बैक हो गई, इसमें और एक पॉइंट मुझे ऐड करना है जो मैं भूल गया था। लाइक डिमांड फॉर इसेंशियल्स, दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स। व्हाट इज डिमांड फॉर इसेंशियल्स, मतलब जीवन आवश्यक, लाइक जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। एंड ऐसे जो भी सेक्टर्स है दैट विल आल्सो रिवर्ट बैक, ठीक है। या फिर ई कॉमर्स, होम डिलीवरी हमने देखा। लेटर वी हैड सीन व्हाट आर द सेक्टर्स दैट विल टेक टाइम, ठीक है, कि कौन से रिकवर होने के लिए टाइम लेंगे, ठीक है। सेक्टर्स जैसे ने का सेक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन पीपल्स बिहेवियर, ट्रैवल, होटल्स, या फिर एंटरटेनमेंट, मॉल्स, फ्लाइंग एयर ओवरसीज, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स व्हिच विल टेक टाइम। उसके बाद वी हैड सीन सेक्टर्स दैट विल बी इन बूम, मतलब लास्ट टाइम वो डिमांड में थे, अभी भी डिमांड में है और फ्यूचर में भी रहेंगे। तो ऐसे सेक्टर्स कौन से, तो फार्मा, मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। या फिर डिजिटल कंपनीज, कंपनीज प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज। एंड इसमें मैंने और एक पॉइंट आपको बोला, वो ऐड किया कि for engineering students focus on those things which you can get placed on, ठीक है। जैसे लेटेस्ट emerging technologies, these things। lessons हमने देखे, what are the lessons we had learned, कि we should focus on health education, ठीक है। इस पे हमने फोकस करने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ज्यादा से ज्यादा इसमें गवर्नमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर द, बिकॉज दिस इज द ग्लोबल चैलेंज। एंड सेकंड थिंग व्हाट वी हैड सीन इज लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या फिर हमारे जो मसालेज वगैरह होते हैं, इट हैज अ डिमांड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इसके लिए डिमांड है, तो वी शुड सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी so that we can become self-sufficient in at least in these of the sectors, ठीक है। ये हमने lessons हमने देखे। हायरिंग प्रोसेस में हमने देखा व्हाट विल बी द मार्केट सिनारियोज एंड हायरिंग प्रोसेस में, जिसमें करंट सिचुएशन में हमने देखा कि नियर अबाउट 60 to 65% ओवरऑल एंटायर सेक्टर्स पे इसका इम्पैक्ट हुआ है। एंड स्पेशली सर्विस सेक्टर पे तो हुआ ही हुआ है, राइट। एंड इसके इम्पैक्ट्स हमने क्या देखे कि क्या हुआ, तो देर इज लाइक हायरिंग, डिले इन हायरिंग प्रोसेस, कैंसिलेशन ऑफ इंटरव्यूज, ठीक है। या फिर लाइक जो भी कुछ एम्प्लॉयज है जिनको निकाल दिया है, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट्स। या फिर इसमें हमने देखा कि लाइक हर बार जिसमें डिमांड होती है, जैसे BFSI, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, हायरिंग, ये प्रोसेस में हर बार हायरिंग होती है, राइट। बट इन दिस सेक्शन अभी ये डाउन हुआ है थोड़ा सा। and company will see as a technology as an alternative, so you have to focus on those things. अभी hiring process in we had seen specific service sector पे 10 to 15% hiring process हुए। and what company will think, इसका impact क्या हुआ है 10 से 15, तो company will think कि like I should search for an alternative, and that alternative may be technology, may be automation। automation in short, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। what is automation, कि अभी जो काम मैन्युअली अगर 300 लोग कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन, विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन हार्डली 30 पीपल कैन डू दैट वर्क। मतलब क्या, तो टेक्नोलॉजी विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर सच अल्टरनेटिव्स, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, technology, automation। So try to focus on these things so that you can survive in the market, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जैसे लास्ट हमने देखा कि कुछ सेक्टर जो अपटिक देखेंगे, जैसे ऑनलाइन क्लासेस या फिर ई कॉमर्स, फार्मा, हेल्थ केयर, जिसमें ज्यादा अपटिक दिखेगा, ठीक है। एंड दिस वाज द स्टेटमेंट विच वाज मेड बाय, लाइक आपको पता होगा, लाइक shine.com पे आप रिज्यूम वगैरह अपलोड करते हो, तो उनके जो CEO है उन्होंने ये स्टेटमेंट किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक लास्ट क्या कैंपस रिक्रूटमेंट की जो है, ये इसमें भी आपको डिले दिख सकता है, राइट। जो बच्चों की प्लेसमेंट्स हुई है, तो उनके भी ज्वाइनिंग डेट्स, अगर सिचुएशन कंटिन्यू है, तो इट में बी डिलेड, ठीक है। सो ये हमने देखा, that was all about sectors, different impacts, hiring process. Apart from this, what are the sectors or where should you focus on? एंड इसके साथ साथ ये जो मुझे और एक बात बोलनी है, these are
ये जो भी वीडियो है इट इज लाइव एज वेल एज यू कैन अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव माय ओन चैनल एज वेल, अभिश्री एकेडमी. In that, like I had my sessions at different colleges, जैसे परिक्रमा कॉलेज हो या फिर SVPMS कॉलेज हो, ठीक है, या फिर AISSM कॉलेजेस हो, या फिर बाटू कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी रायगढ़ की, ठीक है, ये सिंहगढ़ लोनावला, यहाँ पे मेरे कुछ सेशंस हुए हैं. तो देर आर डिफरेंट वेबिनार्स विच आई हैड डिप्लॉयड ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो इसकी लिंक आपको सर शेयर कर देंगे इन व्हाट वी कैन से इन लाइव चैट, जिसमें मेरा यूट्यूब चैनल लिंक है, एंड माय डिफरेंट इनिशिएटिव्स फॉर द यूथ, क्रिएटिविटी एज वेल एज आर्ट ऑफ यूथ, ये सब मैं मेरे चैनल पे डिप्लॉय करता हूँ. सो यू कैन गेट दिस डेटा एज वेल फ्रॉम दैट लिंक एज वेल. यू कैन सर्च आउट, यू कैन चेक आउट माई चैनल एज वेल. ठीक है, फाइन. अभी लास्ट पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज लाइक डिफरेंट. अभी सर ने मुझे बोला था एक्चुअली कि आफ्टर COVID-19, सो दिस वाज द सिचुएशन, बट आई एम गोइंग टू कवर कि what will be the different 10 to 15 parameters after engineering as well. ठीक है, तो इसके ऊपर अभी हम जाते हैं कि what are the different sector, what are the different career opportunities after engineering. ठीक है, now this is the situation और this is the thinking कि जो हर स्टूडेंट के माइंड में होती है. there are different situations in students mind. there can be a family pressure, or students might be confused कि यार like what I should choose as an opportunity of as a career, या फिर they must be wondering कि like क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यार, right? ठीक है, so it is one of the challenges in front of the students कि एक या फिर इंटरेस्ट कुछ और होता है करते कुछ और है. ठीक है, so there are several and इसकी अवेयरनेस बहुत कम है हमारे स्टूडेंट्स में. so for that purpose like I am covering this topic. We are going to cover 10 to 15 parameters which will be as a career opportunities after engineering. ठीक है, yeah. So we'll start with that. Like first तो है higher studies. First thing is like सबसे पहले हम basic से start करते हैं. कैंपस रिक्रूटमेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि जिनको अभी आगे पढ़ाई करने की कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कैंपस में प्लेसमेंट चाहिए, दैट्स इट. तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? यू हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग एप्टीट्यूड, सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. इससे क्या होता है ना, लाइक व्हेन यू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक लीडरशिप हो, कम्युनिकेशन हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, टीम हैंडलिंग, ये सारी चीजें लाइक इट गेट्स इनकलकेटेड इन यू. ठीक है, तो इसमें आपको फोकस करना है. कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आपको क्या फोकस करना है? वर्क ऑन योर एप्टीट्यूड, सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. एंड सेकंड थिंग इज मेंटेन योर CGPA स्कोर, मतलब आपका ओवरऑल जो स्कोर है, एग्रीगेट आप जिसको हम बोल सकते हैं, दैट उस पे आपको फोकस करना है. दिस आर द टू थिंग्स फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट. ठीक है, सेकंड पैरामीटर, दिस वाज द फर्स्ट पैरामीटर. सेकंड पैरामीटर व्हिच वी आर गोइंग टू से इज हायर स्टडीज. जैसे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो गेट. ठीक है, हायर स्टडीज जैसे आप IIT NIT में से आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो. ठीक है, या फिर देर आर टोटल 21 IIT कॉलेजेस एंड देर आर टोटल 31 NIT कॉलेजेस. ठीक है, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों को एक नेशनल इंपॉर्टेंस है, बट व्हाट डिफर्स इज लाइक प्लेसमेंट कितनी है, what are the number of leaders that are produced from that college, और या फिर faculties, college reputers. This is the only differences in both IIT और NIT. ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं, दोनों को नेशनल इंपॉर्टेंस होता है, बट क्या डिफर करता है? तो दीज आर सम ऑफ द लाइक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या फिर प्रोडक्शन ऑफ यूथ, और या फिर यंग लीडर्स हम बोल सकते हैं, या फिर कॉलेज का रेपुटेशन कैसे, ऑन दैट बेसिस ये थोड़ा सा डिफर करता है. ठीक है, तो गेट थ्रू आप आपके हायर स्टडीज लाइक मास्टर्स कर सकते हो. ठीक है, या फिर सेकंड इसमें क्या है, लाइक अगर आपको MS करना है तो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस, जैसे TOEFL हो, IELTS हो, ठीक है, GRE हो. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द पैरामीटर्स जिसपे एज अ फॉर MS दिस इज एन अल्टरनेटिव फॉर MS. ठीक है, जिसको आप चूज कर सकते हो. TOEFL, IELTS, GRE, इसका अभी इसको बेसिक क्या चाहिए? तो लाइक योर एप्टीट्यूड
या फिर योर इंग्लिश कोर, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म ही आपको बोलते हैं टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग लैंग्वेज, या फिर IELTS का अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, या फिर GR का ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इसके नाम ही बोलते हैं कि आपको फोकस कहाँ पे करना है, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड एज वेल एज मैथ्स वगैरह, ठीक है। सो पहले हमने देखा गेट, उसके बाद हमने देखा MS वगैरह, राइट। तो और एक करियर अपॉर्चुनिटी अगर आपको हायर स्टडीज में करना है तो क्या होता है ना, एक एग्जाम है जैम करके, JAM, जॉइंट एडमिशन टेस्ट, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यू शुड हैव 55% एग्रीगेट एंड आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, एज वेल एज यू शुड हैव 55% एग्रीगेट। अभी ये जैम एग्जाम किसके लिए? अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स हु आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन देयर ओन फील्ड, जैसे मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जाना है, या फिर मुझे गवर्नमेंट लैब्स में एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करना है, या फिर टीचिंग सेक्टर, एकेडमिक्स। इंटरेस्ट इन ओन सेक्टर मीन्स एकेडमिक्स एंड रिसर्च इन इंजीनियरिंग, ठीक है। ऐसे अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है, देर इज वन एग्जाम्पल देर इज एन एग्जाम जॉइंट एडमिशन टेस्ट, यू कैन रेफर दैट एज वेल, ठीक है। लास्ट में और हायर स्टडीज में आप क्या कर सकते हो, तो देर यू कैन डू PhD, जैसे मैं कर रहा हूँ फ्रॉम MIT कॉलेज। तो आई हैड completed my engineering, but now I'm pursuing masters from political science because it's my interest, ठीक है। और क्या होता है ना, जब आप ये एग्जाम देते हो कोई भी, तो यू कैन गो फॉर नेट एग्जाम, JRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट आपको लाइक स्टाइफंड भी देता है, लाइक एंड साथ में आई थिंक अभी करंट एक ये आया हुआ है जिसमें गवर्नमेंट हैड टोल्ड कि लाइक यू विल गेट दी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग एज वेल फॉर 2 years, जब आप मास्टर्स करते हो या फिर PhD के लिए एडमिशन लेते हो, ठीक है। एंड दिस यू कैन गो वाया नेट JRF, जिसका CSIR या फिर नेट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर और एक बात, अभी दीज आर द 3 पैरामीटर्स फॉर हायर स्टडीज। इसके साथ साथ अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि यार मुझे अगर मैं हायर स्टडीज के लिए जाऊंगा तो आई विल कंप्लीट माय हायर स्टडीज फ्रॉम VIT कॉलेज, या फिर SRM कॉलेज, या फिर BITS कॉलेज, ये रेप्यूटेड मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस, ठीक है। तो उनकी क्या होती है ना, ओन एंट्रेंस टेस्ट होती है, जो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे करियर में या फिर न्यूज में आपको मिल सकती है, ठीक है। सो दीज आर फॉर हायर स्टडीज, फॉर वी हैड सीन कैंपस प्लेसमेंट, फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड थिंग, हायर स्टडीज में डिफरेंट ऑप्शंस। लेटर लाइक थर्ड ऑप्शन जो है वो है टीचिंग प्रोफेशन में अभी आप जा सकते हो आफ्टर इंजीनियरिंग, ठीक है, टीचिंग या फिर ओन कोचिंग क्लासेस में आप जा सकते हो, ठीक है। ये थर्ड पैरामीटर है। फोर्थ लाइक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब क्या? तो several student think that like I want to go in government, so PSUs होते हैं या फिर PSEs होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एज वेल एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अभी इसमें डिफरेंस क्या है? तो एंटरप्राइजेस मतलब क्या, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब क्या, व्हाट डज मीन, कि गवर्नमेंट का इस पे पूरा कंट्रोल होता है, ठीक, इट इज टोटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मतलब क्या, तो गवर्नमेंट की 51% ज्यादा से ज्यादा शेयर्स होते हैं, ठीक है। अभी इसके एग्जांपल्स कौन से? तो लाइक वाया गेट, लाइक यू कैन गो इन BHEL, SAIL, ONGC, ऐसी जो रेप्यूटेड गवर्नमेंट कंपनीज है, या फिर IOCL, IOL, AII, ठीक है, नॉट AII बट AAI, ठीक है। ऐसी कुछ कंपनीज है या फिर ऐसे कुछ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है कि जिसमें अगर आपको जाना है तो इन दैट केस यू कैन गो बाय गेट। गेट इज द ओनली क्राइटेरिया यू कैन गो इन गवर्नमेंट सर्विसेज। अभी इसका एडवांटेज क्या है ना, इट इज ह्यूज, लाइक आपको सिक्योरिटी बहुत होती है, इसके साथ साथ यू हैव ह्यूज पैकेजेस, ह्यूज सैलरी, ठीक है। ये इसके थोड़े से एडवांटेजेस है। सिक्योरिटी मतलब इन शॉर्ट, अभी फॉर एग्जांपल आपने अभी देखा होगा या फिर आपने कुछ सुना होगा कि कुछ बहुत सारे एम्प्लॉयज है जिनको निकाल दिया है, राइट। बट सिक्योरिटी यहाँ पे इसका मीनिंग ऐसा होता है कि आपको गवर्नमेंट इतनी जल्दी नहीं निकालती, ठीक है। मतलब आप एक ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज आपको लिया जाता है, तो आपको एक जल्दी इतने जल्दी लोग गवर्नमेंट आपको निकालेगी नहीं, जैसे प्राइवेट कंपनीज में होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ऐसा एक सिक्योरिटी का एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। अभी ये हो गया फोर्थ पैरामीटर। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज लाइक एक्सपर्टाइज, एक्सपर्ट सर्टिफिकेशंस, इसमें आप करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में बोला, तो
सर्टिफिकेट्स मतलब क्या, तो इन शॉर्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल। क्या होता है, इफ देर आर 100 स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ क्यू, तो व्हाट इज डिफरेंट इन यू? अगर आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डिफरेंट इन यू, व्हाई आई शुड हायर यू, मतलब सब में जो कुछ है नहीं, आप में ऐसी कौन सी चीज है कि जो सब में नहीं है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट सर्टिफिकेशन। ठीक है, सर्टिफिकेशन। ठीक है, मतलब क्या, तो आपको इतना परफेक्ट होना है उसमें कि इंटरव्यूअर को कोई चांस ही नहीं होना चाहिए कि आपको मैं हायर नहीं करूँ करके। ठीक है, दैट इज नथिंग बट सर्टिफिकेशन। एंड सर्टिफिकेशन आप किस में करना चाहिए, तो जैसे मैंने बोला लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, या फिर मशीन लर्निंग हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो, इथिकल हैकिंग हो। ठीक है, ऐसे ये दीज आर द लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, या तो जिसमें आपने फोकस करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक सर्टिफिकेशन में एक प्रॉब्लम होता है, वो होता है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। ठीक है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की मैं जस्ट आपको एक डेफिनेशन बोलूंगा कि है क्या, आपको अपने आप ये समझ में जाएगा व्हाट इज। अभी जनरली इट इज बीन ऑब्जर्व्ड इन इंटरव्यूज, या फिर कहीं 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 प्लेसेस पे ऐसा दिखता है कि व्हाट इज कट थ्रोट, म्हणजे इन शॉर्ट जब आप सर्टिफिकेशन करते हो एंड ऑन दैट बेसिस यू गो इन द कंपनी, यू गो इन द MNC. So some of the concept that is cutthroat competition is been observed or is been seen there. So what is this? So it's a competition which is very strong, but in an unfair way. Competition which is very strong, but in an unfair way, without considering any harm caused to the others. इसका डेफिनेशन ही आपको मीनिंग बता देती है, बट इन दैट केस आई शुड व्हाट आई विल टेल यू कि आप सर्टिफिकेशन करो, डेफिनेटली MNCs आर लुकिंग और विल लुक फॉर सच पर्सन्स कि जो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा सके या फिर कंपनी को उसका फायदा हो। ठीक है, सो दिस वाज द फिफ्थ पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर व्हाट वी आर गोइंग टू से इज दैट इज MBA, जो हम देखेंगे लाइक नेक्स्ट MBA, राइट। तो MBA के लिए कैट वगैरह हो, ठीक है, कैट इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें कैट स्कोर आपको डिसाइड करेगा कि व्हाट आर द लाइक, अगर आपको MBA करना है तो कैट इज द ऑप्शन। अच्छा, लाइक सर टाइम, सर हेलो पगा सर, आर यू देयर? हेलो, Sir, you are audible. अच्छा अच्छा, फाइन 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 फाइन, अच्छा ठीक है सर, एक हार्डली एक 10 to 15, लाइक 15 minutes, देन लाइक वी विल एंड। Okay, sure. Yeah, fine. So we had seen CAT. This is, it acts as a entry criteria for MPA. इसका स्कोर आपका कॉलेज डिसाइड करता है, जैसे एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू वांट टू गो अब्रॉड फॉर MBA, या फिर MBA करने के लिए अब्रॉड जाना है, तो देर आर सेवरल एग्जाम्स, जैसे CMAT, NMAT, XAT, SNAP, TISS, IRMA। ठीक है, सो MBA दिस इज द ऑप्शन। Later, like what I want to tell is like MICA, that is डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप एक एज अ करियर अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते हो, माइका, अपग्रेड, दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस कि जो आप चूज करते हो कि लेटेस्ट इमर्जिंग टेक, जिसके 6 months के लिए प्रोग्राम होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शंस फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। एंड डिजिटल मार्केटिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो दैट इज जैसे मैं एक आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, लाइक KFC का। तो क्या हुआ था, KFC या फिर मैकडोनल्ड का एक एग्जांपल है। KFC में क्या हुआ था, लाइक KFC को लाइक जब उनका लाइक उनके जो भी प्रोडक्ट्स है, मतलब डिमांड ज्यादा थी और उनकी वो ज्यादा पहुंच नहीं पा रहे थे सब लोगों के लिए, तो लोग पीपल वेयर लाइक डिस्करेज, लाइक थोड़ा सा नाराज हो गए थे। तो इन दैट केस उन्होंने क्या किया, KFC को चेंज करके FCK किया था। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि जो आप डिटेल में कहाँ पे सीख सकते हो कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स इन व्हिच इज लर्नड इन डिजिटल मार्केटिंग। तो वो आप अपग्रेड हो, माइका एक इंस्टीट्यूट है, उससे आप सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइक कुछ ऑप्शंस लाइक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई विल टेक इट लिटिल बिट फास्टर।
लाइक नेक्स्ट ऑप्शन जो है लाइक अब यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस आफ्टर इंजीनियरिंग, जिसमें बट इन दैट व्हाट यू कैन डू इज लाइक आपके फील्ड रिलेटेड बिजनेस आप यू शुड स्टार्ट सो दैट यू कैन अप्लाई योर ओन नॉलेज इन दैट बिजनेस, ठीक है। सो 8th पैरामीटर दैट इज बिजनेस। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी विच यू हैव इज लाइक एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, ठीक है, जिसमें what is entrepreneurship and startup? So you should have your own idea as well as you should have problem solving approach, ठीक है। इसके साथ साथ like you should have capital as well, ठीक है। These are some of the requirements for entrepreneurship and startups. इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक रियल टाइम एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का कैसा होता है। लाइक आपने देखा होगा कि लाइक पेटीएम had solved the problem of cash scarcity, ठीक है। सो इसके अलावा सेकंड एग्जांपल फ्लिपकार्ट रिमूव द हैसल ऑफ शॉपिंग ऑफलाइन, ठीक है। मतलब ऐसा हमने पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं करके, राइट। इसके साथ साथ लाइक हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं, लाइक पेटीएम शुड कैश स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकते हैं। सो दिस वाज द प्रॉब्लम एंड पेटीएम एज वेल एज फ्लिपकार्ट केम अप विद solution. So that is the example of entrepreneurship. अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक आप आर्म्ड फोर्सेस की जिसके रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी करती है, इसके बाद मर्चेंट नेवी एक ऑप्शन है। इसके साथ साथ लाइक नेक्स्ट 12th ऑप्शन दैट इज शेयर मार्केट, जिसमें देयर आर 2 एग्जाम्स दैट इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एज वेल एज सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स करके। ये 2 एग्जाम्स आप दे के लाइक यू कैन चूज दैट एज एन करियर अपॉर्चुनिटी। लेटर लाइक यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन एनजीओज, ठीक है। अगर आपको इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सोशल कॉज यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन एनजीओ, ठीक है। ये एक 13th ऑप्शन है। लाइक 14th लाइक सिविल सर्विसेज, ठीक है, टू लाइक नेशन टू सर्व द नेशन, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। यूपीएससी हो एमपीएससी हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक इसके अलावा इसमें डिटेल अगर कुछ चाहिए लाइक आई हैव वन मोर वेबिनार ऑन computer exams in Batu College, so you can attend that webinar as well. Sir will share the link. And 15th options that is law कर सकते हो आप। Law is also one of the best option after career after engineering, ठीक है। And in that like there are 2 options, career as well as corporate law में अब आप जा सकते हो, या फिर one of the best colleges in India it's like कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली का एक है, और उस बॉम्बे का एक ऑप्शन है जीएलसी बॉम्बे करके, ठीक है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिनाउंड कॉलेजेस फॉर लॉ, दैट्स इट। सो लाइक आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम हुआ है, एंड लाइक इवन आई गॉट द मैसेज फ्रॉम सर, सो लाइक आई हैंड ओवर दिस टू पगार सर। सॉरी सर, लाइक काही कमी पडला असेल तर No, मला no, no, ऍक्च्युली no. बरं Okay, very good. Thank you so much, Abhishek sir. Thank you so much to all participants also. Participants are requested to kindly fill the feedback form, which is very helpful and very important for us. And stay home, stay safe. Thank you so much. Thank you so much to all. Yes. Thank you. Thanks for it.